Assalamu alaikum students, welcome to class 10. Hopefully you will be fine and doing good. Today we are going to start our chapter number 10, simple harmonic motion. Today in this lecture we will discuss the following contents: oscillatory motion, examples plus assignment. First of all, here I am going to start reading from page number 1. Many objectives vibrate, oscillate. An object on the end of spring, a tuning fork, a pendulum beating a third, plastic ruler held firmly over the edge of the table and gently struck. The strings of a guitar or piano vehicles oscillate up and down when they hit a bump. Buildings and bridge vibrate during an earthquake. Indeed, because most solids are elastic, they vibrate when they given an impulse. Because it is so common in everyday life and occurs in so many areas of physics, oscillatory or vibrational motion is of great importance. Mechanically, oscillations or vibrate are fully described on the basis of Newtonian mechanism. Oscillatory motion. The repeated back and forth motion about certain equilibrium position is termed as oscillation or oscillatory motion. The same motion repeats over and over. A particular goes back and forth over the same path in exactly the same way. Following few terminologies associated with the oscillatory motion. Number A, cycle I vibration. One complete round trip of a vibrating body about mean position is called vibration or cycle. To complete one vibration or cycle, the particle must be at the same point and heading in the same direction as it was at the start. B, but time period. The time required to complete one cycle or vibration is called time period. The time period is measured in seconds. Frequency. The number of cycles that the particles complete per unit time is called frequency. The units of frequency are cycles per seconds or hertz. Relationship between time period and frequency. Time period and frequency are reciprocal of each other. T equals to 1 by F. E part है displacement. The distance of oscillating body from the mean position at any instant of time is called displacement. Displacement is measured in meters amplitude. The maximum displacement of a body, its mean position in a cycle, is called amplitude. Amplitude being a length is measured in meter. Okay, now हम देखेंगे वन बाय वन सारी टर्म्स को हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये है क्या. ओके, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं जो रिलेटेड है हमारे पास ऑसिलेशन बॉडी के साथ. oscillatory मोशन क्या होती है? द रिपीटेड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ऑसिलेशन. ठीक है, जब भी कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मूव करती है, ठीक है, आगे जाती है फिर पीछे जाती है फिर आगे जाती है फिर पीछे, तो इसको हम ऑसिलेशन कहते हैं. लेट्स आपके पास एग्जांपल है स्विंग की. ठीक है, स्विंग सबसे पहले आप देखते हैं एक बच्चा है, ठीक है, वो झूले पे बैठा है, आपने उसको पीछे से पुश किया, पहले वो आगे जाएगा फिर मीन पोजीशन पे है फिर आप तक आएगा. ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव कर रहा है. इसी तरह हम देखते हैं कुछ ऐसी सॉलिड बॉडी भी होती है, जब उनको इम्पल्स दी जाती हैं तो वो वाइब्रेट करती हैं. आप देखते हैं जब अर्थक्वेक होता है तो इवन देन बिल्डिंग्स भी वाइब्रेट कर रही होती हैं. ठीक है, आगे पीछे मूव कर रही होती हैं. इसी तरह आपके पास गिटार है, गिटार के जब आप स्ट्रिंग्स को हिलाते हो तो वो भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है. इसी तरह आपके पास घड़ी में आप लोगों ने देखा होगा एक बॉब लगा होता है, वो बॉब आगे पीछे वो बेसिकली क्या होता है? पेंडुलम होता है. उसकी मोशन भी हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन होती है. इसी तरह बहुत सारी रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं
जिनमें बॉडी जब आगे पीछे मूव करती है तो उनकी मोशन को हम क्या कहते हैं, ओसिलेटरी मोशन कहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन, वी टेक एन एग्जांपल ऑफ बॉब पेंडुलम। आपको नज़र आ रहा है पेंडुलम बेसिकली क्या होता है, अ बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग। तो ये एक बॉब है जो इसको हमने स्ट्रिंग से अटैच किया। जहाँ पहली ए पॉइंट पे देखें इसकी ये मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन है या सेंटर पोजीशन है। जब बॉब आगे फॉरवर्ड करेगा तो जहाँ मैक्सिमम पोजीशन तक वो जाएगा वो उसकी बी पॉइंट होगा और एक्सट्रीम पोजीशन होगी। इसी सिमिलरली जब बैकवर्ड जाएगा मैक्सिमम जितनी प्लेस तक जाएगा, जितनी हाइट तक जाएगा सी पॉइंट तक, वो उसका क्या होगा, वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी, यानी मैक्सिमम वो उसी लेवल तक आ सकता है। अब हम देखते हैं कुछ टर्म्स हैं जो एसोसिएटेड हैं विद ऑसिलेटरी मोशन के, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले हमारे पास है फ्रीक्वेंसी होती, सॉरी, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है साइकिल और वाइब्रेशंस आ जाती हैं। फिर उसके बाद हमारे पास टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, फिर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपस में रिलेशन क्या है, फिर डिस्प्लेसमेंट है और उसके बाद एम्पलीट्यूड है। तो ये सारे टर्म्स ऑसिलेटरी मोशन से रिलेटेड हैं। वन बाय वन इनको देखते हैं, बट सबसे पहले हम इनकी डायग्राम देख लेते हैं। यू कैन सी हियर, अब एक वाइब्रेटिंग बॉडी है, ठीक है, उसने मोशन स्टार्ट की फ्रॉम मीन पोजीशन। अब आपको नज़र आ रहा है ये ब्लू जो बॉब है, ऊपर लिखा हुआ है ऑसिलेटिंग बॉडी। अब बॉब जब अपनी पोजीशन से यहाँ से मीन पोजीशन से आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे जाएगा, जब दोबारा वो मीन पोजीशन से वापस होता है तो वो क्या करता है, एक साइकिल कंप्लीट करता है। यानी जहाँ से उसने स्टार्ट लिया फिर वापस वो उसी पोजीशन पे आ गया। यू कैन सी एरो कि उसने स्टार्ट लिया मीन पोजीशन से, फिर मीन पे गया, फिर एक्सट्रीम पे गया, फिर मीन पे गया। तो ये इसका क्या हुआ, वन साइकिल कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब ये टर्म इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये बॉब जब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम, जब बॉब को मैंने पुश किया, ठीक है, वो किसी भी पोजीशन तक जाएगा, उस पोजीशन से लेकर मीन पोजीशन तक वो उसका क्या होगा, displacement. As you learned in previous class, what is displacement? The shortest distance between two points is called displacement. तो किसी भी दो पोजीशन के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। थर्ड टर्म जो इससे एसोसिएटेड है वो है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड होगा, यू कैन सी हेयर, जब बॉब अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा, ठीक है, उससे आगे नहीं जा सकता। लेट्स हमारे पास यू नो वेरी वेल बॉब स्ट्रिंग क्या या पेंडुलम क्या होता है कि कोई भी बॉब हमने स्ट्रिंग के साथ बांधा है। अब वो स्ट्रिंग की जितनी लेंथ होगी उतनी ही मैक्सिमम हाइट तक जाएगा। तो वो हाइट से लेकर इक्विलिब्रियम पोजीशन तक जो डिस्टेंस होगा वो या वो उसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। गॉट इट। दो टर्म्स आप देख रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन, एज आई मेंशन इन प्रीवियस स्लाइड की एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है, जिस मैक्सिमम हाइट तक ऑब्जेक्ट जाता है दैट विल बी एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, अब इसको ये जितनी टर्म्स हमने यहाँ पे देखी इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। ओके, फर्स्ट वन है साइकिल और वाइब्रेशन। एज आई मेंशन इन प्रीवियस कि साइकिल क्या होती है, मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक, फिर दोबारा मीन पोजीशन पे जब बॉडी वापस आती है वन साइकिल कंप्लीट करती है, ठीक है, तो उसको हम वाइब्रेशन और साइकिल कहते हैं। यू कैन सी इन द डेफिनेशन, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन और साइकिल। लेट्स, बॉडी ने मोशन स्टार्ट की ज़ीरो से ए पे गई, फिर ए से ज़ीरो पे, फिर बी पे, फिर दोबारा जब मीन पोजीशन पे रिटर्न हुई तो ये इसका क्या होगा, वन साइकिल और वन वाइब्रेशन कंप्लीट होगी। गॉट इट। तो पूरा एक राउंड ट्रिप जो बॉडी का होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है झूले की, ठीक है, आपने बॉय या कोई भी बेबी है, आपने उसको स्विंग पे पुश किया, ठीक है, जब वो आगे जाएगा फिर मीन पोजीशन फिर आप तक आएगा और दोबारा जब वो मीन पोजीशन पे जाएगा तो वो उसका क्या हो जाएगा, एक साइकिल हो जाएगा या एक वाइब्रेशन हो जाएगी। गॉट इट। नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास रिलेटेड टू, वो है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यू कैन गेस
कि इट इज़ रिलेटेड टू टाइम। टाइम पीरियड की बात हो रही है तो ऑब्वियसली ये टाइम से रिलेटेड होगा। द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब हमारे पास उस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम कंज्यूम हुआ दैट विल बी टाइम पीरियड। लेट्स, अगर हम स्विंग की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। हमने अपनी स्टॉप वॉच को एडजस्ट किया, ठीक है। अब हमने देखा उस बच्चे को मैंने पुश किया, या ठीक है, जब वो आगे गया फिर पीछे आया फिर वो, तो एक राउंड जो उसने कंप्लीट किया, एक राउंड को कंप्लीट करने में, एक ट्रिप को कंप्लीट करने में उसने जितना टाइम लिया दैट विल बी टाइम पीरियड, ठीक है। इसी तरह अगर हम पेंडुलम की बात करते हैं, पेंडुलम को जब मैंने पुश किया वो आगे गया फिर पीछे आया फिर दोबारा जब अपनी मीन पोजीशन पे आया, यानी उसने जब वन वाइब्रेशन कंप्लीट की, वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम उस बॉब ने कंज्यूम किया दैट विल बी टाइम पीरियड। सिंबल इट इज़ डिनोटेड बाय टी। कैपिटल टी से हम टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं, ठीक है। स्मॉल टी से हम टाइम को डिनोट करते हैं। सो ये चीज़ याद रखिएगा, टाइम पीरियड denoted by capital T. The unit of time period is second, चूँकि ये time है so it is measured in seconds. Next you can see frequency. Frequency, basically frequency होती क्या है, number of repetitions, ठीक है। अगर एक चीज़ कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है, the number of cycles complete per unit time is called frequency. होपफुली आप लोगों को बहुत टर्म्स क्लियर होगी होंगी, साइकिल भी और टाइम पीरियड भी, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि जितने राउंड्स, जितने ट्रिप्स, जितने साइकिल्स या जितनी वाइब्रेशंस, चारों एक ही टर्म्स हैं, ठीक है। जितनी वाइब्रेशंस वो कंप्लीट करती है यूनिट टाइम में, ठीक है। एक मिनट में वो मिनट में वो जितना टाइम सॉरी जितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट करती है दैट विल बी फ्रीक्वेंसी। लेट्स, हमने कहा कि एक मिनट में ये बॉडी, हमने चेक करना है कि एक मिनट में बॉडी कितनी ऑसिलेशंस कंप्लीट करती है, ठीक है। तो वो उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी। मैंने स्टॉप वॉच एडजस्ट की, अब मैंने टाइम सेट किया कि हमने 2 मिनट्स के लिए इसकी वाइब्रेशंस चेक करनी है। अब जो झूला है, ठीक है, उसको पुश करके हमने छोड़ दिया। अब देखते हैं 2 मिनट तक वो कितनी वाइब्रेशंस लेता है। तो बेसिकली वो जितनी वाइब्रेशंस होगी, जितने साइकिल्स होंगे, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। गॉट इट। अब इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल एफ से, ठीक है, सॉरी स्मॉल एफ से। कैपिटल एफ से हम फोर्स को डिनोट करते हैं। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स। इसको हर्ट्स, 1 हर्ट्स विल बी इक्वल टू 1/s, यानी 1 साइकिल पर सेकेंड। एक सेकेंड में वो कितने साइकिल्स कंप्लीट करता है, ठीक है। यानी एक सेकेंड्स में वो 1 साइकिल पर सेकेंड, एक सेकेंड में वो एक साइकिल कंप्लीट करता है दैट विल बी इक्वल टू 1 हर्ट। साइकिल को आप लोगों को पता है वाइब्रेशन, 1 वाइब्रेशन कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड विल बी 1 हर्ट्स। गॉट इट। सो यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी विल बी हर्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं हम। ओके, अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी क्या है, ठीक है। होपफुली दोनों टर्म्स के आपको समझ आ गई होगी, टाइम पीरियड क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के इन्वर्स हैं। टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1/f। टाइम इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, टाइम डिक्रीज, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। एज यू लर्न इन क्लास 9, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस ऑफ ऑसिलेशन बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड ए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेट्स, एज आई मेंशन इन प्रीवियस के, अब मेरे पास एक बॉब है, उसको मैंने पुश किया, वो जहाँ तक भी गया, ठीक है, जब वो ड्यूरिंग ऑसिलेशन वो जहाँ तक भी गया, उसकी और मीन पोजीशन के दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड।
यू कैन सी इन द डायग्राम। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बॉब है। अब बॉब को पुश किया, वो मैक्सिमम जहाँ तक जाएगा दैट विल बी एम्पलीट्यूड, ठीक है, यानी उससे आगे वो जा ही नहीं सकता, एक्सट्रीम पोजीशन है। तो वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जब बॉब जाता है दैट विल बी एम्पलीट्यूड ऑफ बॉब और एम्पलीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट। यूनिट, क्योंकि एम्पलीट्यूड बीइंग लेंथ सो मेजर्ड इन मीटर, एम्पलीट्यूड क्या है, लेंथ होती है, ठीक है, एम्पलीट्यूड या हाइट की होती है, दैट विल बी मेजर्ड इन मीटर, ठीक है। यू नो वेरी वेल, लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं। होपफुली इट इज़ क्लियर, ठीक है। ऑल टर्म्स रिलेटेड टू ऑसिलेशन होपफुली क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है, ठीक है। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इफ़ द टाइम पीरियड इज़ 20 सेकेंड्स। फ्रीक्वेंसी क्या होगी अगर हमारे पास टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड्स है। तो गिवन डेटा, यू नो वेरी वेल, जब भी हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं तो इसके दो स्टेप्स होते हैं। पहले हम गिवन डेटा, सेकंड रिक्वायर्ड एंड थर्ड सोल्यूशन। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन क्या है। गिवन जो हमें स्टेटमेंट में चीज़ गिवन है, तो क्या गिवन है, टाइम पीरियड 20 मिली सेकेंड्स में को हम कन्वर्ट करते हैं सेकेंड्स में, तो हम 1000 पे, बिकॉज मिली विल बी इक्वल टू 10⁻³ और 1000, ठीक है। तो वी गेट 0.02 सेकेंड्स। अब हमें रिक्वायर्ड क्या है, सॉरी बेटे, यहाँ पे एफ कैपिटल है, स्मॉल लिखना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। थर्ड स्टेप हमारे पास सोल्यूशन है। सबसे पहले वी नो दैट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/t, यानी फ्रीक्वेंसी एज आई मेंशन इन प्रीवियस के बोथ टर्म्स आर इन रेसिप्रोकल टू ईच अदर। टाइम इक्वल्स टू 1/f, एफ इक्वल्स टू 1/t। सो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो अब पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन ए, what is the value of t, 0.02 seconds, 1 divided by 0.02 seconds। इसको जब हमने डिवाइड किया we get 50, 1 by s, यानी पर साइकिल, 50 पर साइकिल। you know very well 1 cycle per second will be equal to hertz, ठीक है, 1 by s equal to hertz। so फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है, हर्ट्स, 50 हर्ट्स। वी गेट आंसर f equals to 50 hertz. Got it? Next you can see here assignment is, it is your homework, you should be done on your physics notebooks। जो आपने न्यू वाली नोटबुक्स बाय की हैं उसमें आपने ये असाइनमेंट स्टार्ट करनी है, ठीक है। समिंग अप, ओके। अब आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, हम उसको एक दफ़ा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा वाइब्रेशन और ऑसिलेशन होती क्या है। तो रिपीटेड बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेशन और ऑसिलेशन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा साइकिल, सेम थिंग, ठीक है, 1 कंप्लीट राउंड ट्रिप फ्रॉम मीन पोजीशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड साइकिल। फिर हमने देखी जो टर्म एसोसिएटेड हैं, फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर हमने देखा कि टाइम पीरियड मेंशन। फिर हमने देखा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फिर हमने देखा कि रिलेशनशिप टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का क्या है, बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है, ऑपोजिट है। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन टू any instant of time or from any position is called displacement. Basically shortest distance between two position is called displacement, but in term of oscillation the distance of oscillating body from the mean position at any instant of time is called displacement and it is denoted by x naught। उसके बाद amplitude, amplitude हमने देखा maximum displacement of the body from its mean position in a cycle is called amplitude, it is denoted by x naught। got it? hopefully it is cleared। और ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे असाइनमेंट करनी है, ठीक है। और जितनी ये टर्म्स हैं, all the terms should be done on your notebook। सबसे पहले व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है,
और उससे रिलेटेड जितनी टर्म्स हैं ये आप लोगों ने अपनी नीट नोटबुक पे करना है। आइए समझ। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।